Hello and welcome back students. This is a video lecture on the board syllabus of Gondwana University, Masters in Computer Science, first year, semester 2, Web Technologies. Today's topic is database models. So basically what is a database model? It defines the logical design and structure of a database and defines how data will be stored, accessed and updated in a DBMS. बेसिकली जो मॉडल होता है DBMS का, डेटाबेस का, वो ये डिफाइन करता है कि एक तो उसमें डेटा का स्टोरेज किस पैटर्न में होने वाला है, एंड सेकेंडली इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ विल बी द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस. सो बेसिकली while the relational model is the most widely used database model, there are other models too. What are the different types of models? Hierarchical model, network model, ER model, and you have a relational model. Let's see the first type, that is the hierarchical model. Now this database model organizes data into a tree like structure with a single root to which all other data is linked. यहाँ पे क्या होता है कि डेटा जो होता है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हुआ रहता है और एक सिंगल रूट होता है और अदर डेटाज इसी रूट को लिंक्ड रहते हैं. द हिरार्की स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट डेटा एंड एक्सपांड्स लाइक अ ट्री, एडिंग चाइल्ड नोड्स टू द पेरेंट नोड. एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो कॉलेज इज द रूट नोड, उसी से निकला डिपार्टमेंट, उसी से निकला इंफ्रास्ट्रक्चर. डिपार्टमेंट की जब बात की जाएगी तो उसमें कोर्सेज होंगे, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, and then when we talk about courses then can be theories and labs etc. ठीक है, तो इस टाइप का hierarchical data जहाँ पे एक root data होता है and then उसके child data होता है. तो every child, as you can notice also, every child will have only a parent, one parent node, that is one single parent. This model efficiently describes many real world relationship like index of a book, recipes etc. So like when you speak of indexes, तो वो indexes connect करते हैं many different topics को. In hierarchical model, data is organized into a tree hierarchical model like structure with one to many relationship. पेरेंट एक है बट चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं, तो वन टू मैनी का यहाँ पे रिलेशनशिप है, जैसे वन टू मैनी. ओके, एंड लाइक एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी कोर्सेज और मेनी प्रोफेसर्स एंड ऑफ कोर्स मेनी स्टूडेंट्स कैन बी देयर इन अ सिंगल डिपार्टमेंट. सो दिस इज hierarchical model. This model was primarily used by IBM's information management system in the 60s and 70s, but they are rarely seen today due to certain operational efficiencies. So we can say that this was used by IBM information management system when in 60s and 70s, but now due to its operational inefficiencies it's no more in use. Next आ जाता है आपका network model. This is an extension of the hierarchical model. No doubt it is an extended version of your original hierarchical model. In this model data is organized more like a graph. ग्राफिकल फॉर्म में डेटा होता है एंड बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, ज़्यादा रिलेटेड डेटा होता है, रिलेशनशिप ज़्यादा निकल पाती है बिकॉज यू कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड. एवरी डेटा कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड और हमें यही तो करना है. हमें जितना ज़्यादा डेटा के रिलेशंस मिलते जाएंगे उतना एफिशिएंट होगा ना डेटा को एक्सट्रैक्ट करना. तो इन दिस डेटा बेस मॉडल डेटा इज मोर रिलेटेड as more relationships are established in this database model. Also as the data is more related, accessing the data is easier and that too fast. This database model was used to map many to many relationships. यहाँ पे ना many to many relationships काम आती है. And this was the most widely used database model until your relational model came into existence. तो जब तक रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो नेटवर्क मॉडल वॉज अ वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल. एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, सी नोड ए, it is having two child nodes b1 b2, but a child node say c2 can also have two parents. Say b1 is also its parent node and b2 is also its parent node. So it was a popular language, it was a popular model in 70s और formally इसको define किया गया था conference on data सिस्टम लैंग्वेजेस में. ठीक है, डिफाइंड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस कोडासिल. ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका ER मॉडल. कौन सा मॉडल आता है इसके बाद? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल.
अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इन दिस डेटाबेस मॉडल रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इनटू एंटिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स है उसको क्रिएट करने के लिए जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसको ब्रेक करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रेक कर देना है स्मॉल एंटिटीज में। डिफरेंट एंटिटीज आर रिलेटेड देन यूजिंग रिलेशनशिप्स। ER मॉडल आर डिफाइंड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप इनटू पिक्टोरियल फॉर्म टू मेक इट इजियर फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड। और एक बार आपने एक ऑब्जेक्ट को उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग एंटिटीज में ब्रेक कर दिया तो यू विल हैव टू रिप्रेजेंट दैट इनटू पिक्टोरियल फॉर्म। This model is good to design a database which can then be turned into tables in relational model. Let's take an example. If we have to design a school database, जैसे स्कूल का database बनाना है, तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? नेम, एज, एड्रेस। एज एड्रेस इज जनरली कॉम्प्लेक्स, एड्रेस को वापस एक एंटिटी को ब्रेक कर दो उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स में, जैसे स्ट्रीट का नाम, पिन कोड, सिटी, एंड देयर विल बी रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। रिलेशनशिप्स कैन ऑल्सो बी ऑफ different types. There can be different types of relationships, no doubt. See, this is a diagram for your ER model. सो स्टूडेंट का एड्रेस, एज, आईडी अलग अलग एंटिटीज है। अब ये कॉमन फॉर्म ऑफ ER डायग्राम इन द स्टार स्कीमा, स्टार के फॉर्म में बनाया गया है। इसमें एक सेंट्रल फैक्ट टेबल कनेक्ट्स टू मल्टीपल डायमेंशनल table. Okay, so this is about ER model. Then comes the most widely used database model and most popular database model, that is your relational model. अब इस मॉडल में data is organized in 2-dimensional tables and the relationships is maintained by storing a common field. अब यहाँ पे हर रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप डेटास को अलग अलग मल्टी डायमेंशनल 2D टेबल्स में स्टोर करोगे, 2D टेबल्स में, और हर टेबल की एक कॉमन फील्ड होगी एंड दैट इज द की पॉइंट। उस फील्ड के थ्रू ही रिलेशनशिप फॉर्म होगी। उस कॉमन फील्ड को हम नॉर्मली प्राइमरी की बोलते हैं। दिस मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस बाय EF कॉर्ड इन 1970। तो 1970 में EF कॉर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था और तब से अब तक since then it has been the most widely used database model. In fact, we can say the only database model used around the world. It is the only database model used around the world. The basic structure of data in relational model is tables. तो basic structure किसी भी data का relational model में tables होता है। All the information related to a particular type is stored in rows of that table और सारी information उससे related rows में stored होंगी। Hence tables are known as relations in relational model. इसीलिए tables को हम क्या बोलेंगे? टेबल्स आर नोन एज रिलेशंस इन रिलेशनल मॉडल। टेबल्स को ही आप रिलेशंस बोल सकते हो बिकॉज सारा डेटा या जो भी है वो टेबल फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। द मोस्ट कॉमन मॉडल, द रिलेशनल मॉडल, सॉर्ट्स डेटा इनटू टेबल ऑल्सो नोन एज रिलेशंस, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रो। हर टेबल में कॉलम है, हर टेबल में रो है। अब हर कॉलम जो है वो एक एंटिटी की एट्रीब्यूट को दर्शाएगा। जैसे कि समझो ईच कॉलम लिस्ट एन एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी इन क्वेश्चन। सच एज अगर प्रोडक्ट की बात करें तो एक कॉलम में उसका प्राइस लिखा होगा, एक कॉलम में उसका जिप कोड लिखा होगा। तो हर एक कॉलम एक एंटिटी का ये बन जाता है, एट्रीब्यूट बन जाता है। एंड अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट इज चोजन एज अ प्राइमरी की दैट कैन बी रेफर्ड टू इन अदर टेबल्स। अच्छा, प्राइमरी की जब बात की जाएगी तो वो ऐसा कॉलम होता है जिसकी वैल्यू या कभी नल नहीं हो सकती या तो फिर उसकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके रोल नंबर्स, एग्जाम के फॉर्म भर के आपको जो रोल नंबर्स मिलते हैं, इन दैट केस हर बच्चे को एक यूनिक रोल नंबर मिलता है और डेफिनेटली मिलता है। किसी बच्चे का ऐसा तो नहीं होगा कि रोल नंबर आए ना किसी कैंडिडेट का। तो ऐसे सब कॉलम्स जो यूनिक भी है और नॉट नल है एंड देन उनके थ्रू आप डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो ऐसे कॉलम्स को प्राइमरी की कहा जाता है। और एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में रेफर किया जाता है एज अ फॉरेन की। वेरी सिंपल, ठीक है। टुगेदर द एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड अ डोमेन एंड अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट इज चोजन एज अ प्राइमरी की दैट कैन बी रेफर्ड टू इन अदर टेबल व्हेन इट्स कॉल्ड अ फॉरेन की।
हर एक रो जो है वो एक एंटिटी के बारे में बात करता है, उसके इंस्टेंस के बारे में। जैसे पूरा टेबल बना हुआ है तो सब बच्चों के डिटेल्स है, नेम, एज, क्लास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर राज नाम का कोई स्टूडेंट है तो राज की इंफॉर्मेशन एक रो एक्सट्रैक्ट करोगे, राज वाला रो एक्सट्रैक्ट करोगे तो राज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली टपल जो हम बोलते हैं उसके थ्रू यही एक एडवांटेज है कि रो जो है वो टपल इंक्लूड्स डेटा अबाउट द स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी in question, such as particular employee. The model also accounts for the type of relationship between those tuple. अब कितने टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं तो हमें पता ही था। एक तो होता है 1 to 1, हर एक का रिलेशन एक ही के साथ। 1 to many, वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 1 कैन बी कनेक्टेड टू मेनी इन टेबल 2। एग्जाम्पल, एक टेबल स्टूडेंट का बना दो, एक टेबल कोर्सेज का बना दो, मतलब सब्जेक्ट्स का। तो एक ही स्टूडेंट मेनी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो ये 1 to many रिलेशनशिप हो गई। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स हो सकती है, मेनी टू 1 रिलेशनशिप्स हो सकती है। और जो भी हो, रिलेशनल डेटाबेसेस नॉर्मली SQL में ही लिखे जाते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है, सो दिस इज रिलेशनल मॉडल। इसका एक पिक्टोरियली डायग्रामेटिकली ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे पास। ये हमारा स्टूडेंट टेबल है ना। इन दिस स्टूडेंट टेबल व्हाट यू कैन सी, एक ID कॉलम है, नेम कॉलम है, एज कॉलम है। ये है सब्जेक्ट का टेबल क्योंकि सब्जेक्ट ID है, सब्जेक्ट का नाम है एंड सब्जेक्ट का टीचर भी लिखा हुआ है। ये 2 टेबल है, इनको कंबाइन करके 3rd टेबल बनाया गया है। तो इस टेबल को रेफर करने के लिए इसकी प्राइमरी की बन गई स्टूडेंट ID विच इज़ नॉट नल एंड यूनिक। सब्जेक्ट ID इज़ नॉट नल एंड यूनिक, ये इसकी प्राइमरी की है। ये दोनों यहाँ आ गए। अभी ये फिलहाल फॉरेन कीज है एंड दीज आर द मार्क्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम these models which we have discussed, there are other different types of database models not to be kept much in detail, but then just for informative purposes you can have hierarchical database model which we have already discussed, relational model done, network model done. Then there are object oriented database model, ER model we have seen, document model, entity attribute value model, star schema, cloud database model, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ये वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और रिलेशनल मॉडल को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, एंड देर आर फ्यू मोर टू दिस। अब फाइल बेस्ड डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं? तो 1968 वॉज द ईयर व्हेन फाइल बेस्ड डेटाबेस वॉज इंट्रोड्यूस। सबसे पहले फाइल बेस्ड डेटाबेस इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फ्लैट फाइल के फॉर्म में डेटाबेस यहाँ पे होता है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस है जो फाइल्स के होते हैं एंड डेफिनेटली लिमिटेशंस भी होंगे। तो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज इज दैट फाइल सिस्टम हैज़ वेरियस एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल, इंडेक्स्ड एंड रैंडम। और इसमें एक्सेसिव प्रोग्रामिंग होती है जो कि नॉर्मली आपकी 3rd जनरेशन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करेगी, जैसे कि कोबॉल या बेसिक लैंग्वेजेस। सो दिस इज फ्लैट फाइल डेटाबेस मॉडल। Charles Pachman developed the first DBMS at Honeywell called Integrated Data Store, IDS. It was developed in the early 1960s, but it was standardized in 1971 by the Codacell Group. In this model, files are related as owners and members like to common network model. ठीक है, this is basic information about that model. Now आ जाता है क्लाउड डेटाबेस, और ये तो हमारे टाइम के लिए बहुत ही अपकमिंग टॉपिक हो सकता है एट दिस स्टेज ऑफ आवर जनरेशन की। क्लाउड डेटाबेस फैसिलिटेट्स यू टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव द स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड वाया क्लाउड प्लेटफॉर्म। दिस डेटा इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। अब डायरेक्टली एक इंटरनेट कनेक्शन है तो कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। इट्स जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड ये डेटा स्टोर होता है। क्लाउड डेटाबेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड डेटाबेस एज सर्विसेज, DBAS, बिकॉज दे आर ऑफर्ड एज मैनेज सर्विस। सम बेस्ट क्लाउड ऑप्शंस आर अमेजॉन, ये अवेलेबल सर्विसेज है हमारे पास, स्नोफ्लेक कंप्यूटिंग, ओरेकल डेटाबेस क्लाउड सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, गूगल का क्लाउड सर्वर स्पैनर है। ठीक है, एडवांटेजेस ये है, लो कॉस्ट है, ऑटोमेटेड है एंड इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। लो कॉस्ट कैसे है भाई? जनरली कंपनी प्रोवाइडर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन डेटाबेसेस, इट कैन मेंटेन। बस आपको क्लाउड पे अपना डेटा सेंटर लेना है, आपको पर्सनली कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऑटोमेटेड है बिकॉज क्लाउड डेटाबेसेस आर एनरिच्ड विद अ वेराइटी ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेसेस सच एज रिकवरी, फॉलोवर एंड ऑटो स्केलिंग। और एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ती है? यू कैन एक्सेस योर क्लाउड डेटाबेस from any location, any time, anywhere. All you need to have just an internet connection. So this is cloud databases. Now NoSQL database.
A NoSQL database is an approach to design such databases that can accommodate a wide variety of database models. बहुत ज़्यादा टाइप इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अकोमोडेट हो जाता है. अच्छा, यहाँ पे नो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर नॉट ओनली एसक्यूएल, अपार्ट फ्रॉम एसक्यूएल. एक अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस को, जिसमें डेटा विल बी प्लेस्ड इन टेबल्स एंड डेटा स्कीमा इज परफेक्टली डिजाइन बिफोर द डेटाबेस इज बिल्ड. नो एसक्यूएल डेटाबेसेस लार्ज सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लिए यूज़ होता है. कुछ कॉमन टाइप के नो एसक्यूएल डेटाबेसेस यहाँ पे मैंगो डीबी, काउच डीबी, क्लाउडेंट, ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है. ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस, यू कैन कीप इट इन योर माइंड. मैम कैच, रेडिस, कोहेरेंस की वैल्यू है, एच बेस, बिग टेबल, एक्यूमुलो, टैबुलर. ऑब्वियसली कम्स विद सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. What is the advantages? High scalability. NoSQL can handle an extensive amount of data because of scalability. If the data grows, NoSQL database scale it to handle that data in an efficient manner. NoSQL supports auto replication. Auto replication makes it highly available because in case of any failure, data replicates itself to its previous consistent state. तो NoSQL जो है वो extensive amount of data को हैंडल कर पाता है, सबसे बड़ी बात. और जैसे कि डेटा और अगर एक्सपांड हो रहा है तो डेटा अपने आप को स्केल करता है उस एफिशिएंटली उस डेटा को हैंडल करने के लिए. हाई अवेलेबिलिटी है, ऑटो रेप्लिकेशन हो सकता है. ऑटो रेप्लिकेशन मेक्स इट हाईली अवेलेबल बिकॉज इन केस ऑफ एनी फेलियर, कभी कुछ फेलियर हुआ तो वो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है. रेप्लिकेट यानी रिपीट कर लेता है प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट के लिए. ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस तो थे ही. नो एसक्यूएल एक ओपन सोर्स डेटाबेस है, सो देर इज़ नो रिलायबल स्टैंडर्ड नहीं है उसका कुछ. मैनेजमेंट चैलेंज, डेटा मैनेजमेंट इन नो एसक्यूएल मस्ट मोर कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे डेटा को मैनेज करके रखना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू इंस्टॉल एंड इवन मोर हेक्टिक टू मैनेज इट ऑन ए डेली बेसिस. कोई GUI अवेलेबल नहीं है. जो GUI टूल मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स फॉर नो एसक्यूएल डेटाबेस आर नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. बैकअप एक अलग ग्रेट वीक पॉइंट है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का. सम डेटाबेसेस लाइक मैंगो डीबी हैव नो पावरफुल अप्रोचेस फॉर द डेटा बैकअप. यू कैन नॉट हैव द बैकअप. द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्वियसली लाइक द ऊप्स कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशंस, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो जाएगी. द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस कंटेन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. ऑब्जेक्ट्स आर द रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड टाइप्स आर द collections of object. An object oriented database is a combination of relational model features with objects oriented principle. ये एक alternative है implementation to that of relational model. Definitely object oriented database holds the rules of object oriented programming. An object oriented database management system is a hybrid application. Relational database properties, atomicity, consistency, integrity, durability, all these properties hold it. जब आप object relational database model बात करते हो तो उसमें object oriented plus relational दोनों की properties आ जाती है. तो atomicity, consistency, integrity, durability and concurrency भी hold करेगा. ठीक है. So last is your graph databases. Now graph databases are is a NoSQL database. It is a graphical representation of data. It contains nodes and edges. A node represents an entity, whereas edge will definitely represent a relationship. Every node in a graph database represents a unique identifier. Graph databases are beneficial for searching the relationship between data because they highlight the relationship between relevant data. अच्छा, graph databases are very useful when the database contains a complex relationship and dynamic schema. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ IP टेलीफोनी. एक एग्जाम्पल भी बना हुआ है यहाँ पे डायग्रामेटिकली. एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. व्हाट फ्रॉम दिस होल यू कैन कीप इट इन योर माइंड इज द 4 मेजर टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स, keeping a rough idea of the rest of the models which I have discussed, and then the relational model, which is a widely used model as we have seen, and we have also seen that this relational database management system at present is the most widely used approach.
So let's see that in detail. RDBMS stands for Relational Database Management System. All modern database management systems like SQL हो या MySQL सर्वर हो, IBM, DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access सारे RDBMS पे बने हुए हैं. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज वो रिलेशनल मॉडल पे इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कॉड था, उस पर डिज़ाइन किया गया था, उस पर बेस किया गया था. हाउ डज इट वर्क्स? इसमें टैबुलर फॉर्म में डेटा रखा होता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में. ये मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस है. नंबर ऑफ टेबल्स एंड ईच टेबल में हर एक की अपनी प्राइमरी की यानी एक यूनिक कॉलम होता है. ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल्स डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजीली इन RDBMS. ठीक है, अब इसमें डेटा एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है. एक तो बिकॉज ऑफ दैट प्राइमरी की एंड देन ऑर्गेनाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल इटसेल्फ मेक्स इट ईजियर टू एक्सेस. तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जब हम RDBMS की बात करते हैं. तो टेबल रिकॉर्ड्स मीन्स योर रोज और टपल्स, फील्ड, कॉलम, everything is same. Instance, schema, keys. ठीक है, तो RDBMS is a tabular database management system that maintains security of your data, integrity of your data. It has to be an accurate data, consistent होना चाहिए data and so on. Let's start. The next thing to be done is what is a table now. So what is a table? By now you have understood obviously. एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होती है. The RDBMS database uses table to store data. A table is a collection of related data entries and contains rows and columns to store data. A table is a simple example of data storage in relational database management system. ये आपका टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे कहते हैं रिकॉर्ड. 2RN20C है, ये पूरा एक रिकॉर्ड है. नेम की बात करें तो ये फील्ड है और ये पूरा एक कॉलम है. ठीक है, फील्ड में एट्रीब्यूट्स होते हैं. फील्ड मीन्स नथिंग बट योर एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे आप हो तो आपका नाम, आपका एज, आपका कोर्स, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट टेबल. यहाँ पे बात की जाए अगर फील्ड की, तो फील्ड एक स्मॉलर एंटिटी है जो कंटेन करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट यू आर डिफाइनिंग, अबाउट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल. इन द अबव एग्जाम्पल द फील्ड इन द स्टूडेंट टेबल कंसिस्ट ID हो सकता है, नेम, एज, कोर्स. व्हाट इज अ रो और रिकॉर्ड? अ रो ऑफ अ टेबल ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड. इट कंटेन्स द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंट्री इन द टेबल. तो एक रो में एक टेबल की एंट्री होती है, एक हॉरिजॉन्टल एंट्री होती है. फॉर एग्जाम्पल द अबव टेबल कंटेन्स 5 रिकॉर्ड्स. इसमें 5 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी है और एक रिकॉर्ड उन्होंने यहाँ पे बना के भी दिखाया कि ये 1 अजीत 24 बीटेक, ये हमारा एक रिकॉर्ड हुआ. अगर आप कॉलम और फील्ड में डिफरेंस देखें तो नेम हमारा फील्ड है बट पूरा अगर ये सेट उठा ले तो ये कॉलम हो जाता है. अ कॉलम इज अ वर्टिकल एंट्री इन द टेबल विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक फील्ड इन अ टेबल. एक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉलम में मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल नेम इज अ कॉलम इन द अबव टेबल विच कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट नेम. तो अब स्टूडेंट के जितने भी नाम हैं वो कॉलम में मिलेंगे आपके अंडर द फील्ड नेम. लास्ट है व्हाट इज अ फाइल, एंड अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन बुक इज एन एनालॉगस टू अ फाइल. इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जिसमें 3 फील्ड होंगे. अगर टेलीफोन बुक की बात की जाए, किसी का नाम, एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर, तो ये फाइल बन गया. फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.